وارث اہل صوفا کے تقدس کی کہانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں جس کا عنوان ہے ساس اور بہو۔ اسلامی بہنوں، ساس اور بہو کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جن کی جنس، فطرت، خواہشات اور جذبات ایک ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے بعد برابر درجہ رکھتی ہیں، پھر بھی دونوں میں لڑائی جھگڑے جاری رہتے ہیں۔ حالانکہ ساس اپنی پسند کی بہو تلاش کرتی ہے، منگنی کے وقت سے ساس بہو کو عیدی، تہواری، تحفہ اور ہدیہ وغیرہ سے نوازتی رہتی ہے، بہت چاؤ سے اسے بیاہ کر اپنے گھر لاتی ہے۔ کچھ دنوں تک ساس اور بہو میں محبت رہتی ہے، پھر دھیرے دھیرے ایک ساتھ رہتے رہتے چھوٹی چھوٹی بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، یہاں تک کہ حد کی نہ کپٹ، چگلی، غیبت، الزام ترازی، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے کی نوبت تک آ جاتی ہے۔ بیٹے کی جات شکایت کا رجسٹر بن جاتی ہے۔ بیٹا اگر ماں کو خوش رکھے تو بیوی ناراض، بیوی کو خوش رکھے تو ماں ناراض۔ بلا آخر ساس بہو کا جھگڑا یہیں آ کر ختم ہوتا ہے جب بہو کو الگ گھر مل جائے، اور اسلام نے عورت کو یہ حق بھی دیا ہے کہ اس کے پاس ایسا گھر ہو جس کی وہ خود ذمہ دار ہو، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا۔ اور عورت بھی اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ عورت کے پاس گھر کی ذمہ داری ہونی چاہیے، کیونکہ سوال اسی سے ہوتا ہے جس کے پاس ذمہ داری ہو۔ میری بہنوں، ہمارے سامنے ایسی ساس بہو کا مسئلہ ہے جو عام طور پر ایک ہی گھر میں رہتی تھی یا کسی وجہ سے انہیں ایک ہی گھر میں رہنا پڑتا ہے۔ ایسے میں کون سا رویہ اپنایا جائے جس سے ساس بہو کے پھیلتے ہوئے جھگڑے کو ختم کیا جا سکے؟ اگر سوچا جائے تو 4 قسم کے لوگ اس جھگڑے کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، بہو کے والدین۔ نمبر 2، ساس سسر۔ نمبر 3، شوہر۔ نمبر 4، والدین، ساس سسر اور شوہر۔ نمبر 4، شوہر۔ نمبر 3، شوہر۔ نمبر 4، بہو۔ آئیے اب دیکھیں کہ اس تناظر میں کس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ والدین کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو بہو کی حیثیت سے ویسی ہی تعلیم میں تربیت کرے جس طرح کے وہ خود اپنی بہو سے خواہش رکھتے ہیں۔ والدین کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو نکاح سے پہلے یہ بتائے کہ وہ کسی پرائے گھر میں نہیں جا رہی بلکہ اپنے شوہر کے گھر میں جا رہی ہے، اس کے گھر کو اپنا گھر سمجھے۔ اسی طرح شوہر کے باپ کو باپ، ماں کو ماں، بھائی کو بھائی، بہن کو بہن سمجھے، ہر ایک کا احترام کرے اور چھوٹوں سے شفقت و محبت کا برتاؤ کرے اور ماں باپ کے ساتھ فرما برداری کرے اور نافرمانی سے پرہیز کرے اور صلہ رحمی کا پوری طرح پاس و لحاظ کرے، کیونکہ حدیث کے اندر صلہ رحمی کا بھی حکم دیا گیا ہے، من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جس کو پسند ہے کہ اس کی روزی میں کسادگی اور عمر میں برکت پیدا ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے۔ لیکن افسوس صدا افسوس، آج والدین نے اپنی اولاد کی دینی تعلیم میں تربیت کا فریضہ چھوڑ دیا اور دنیاوی تعلیم کو اہمیت دیا اور مخلوط تعلیم میں بے لگام چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اولاد والدین کی بات کو اہمیت نہیں دیتی۔ اب جب بیٹی اپنے والدین کی فرما بردار اور خدمت گزار نہیں رہی تو ساس سسر کی خدمت گزار کیسے ہو سکتی ہے؟ والدین اس مسئلہ کا احساس کرے اور اپنی اولاد کی فکر کرتے ہوئے تباہی سے بچائے، جیسا کہ قرآن کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہمارے معاشرے میں ایک رجحان یہ بھی ہے کہ مائکے والے سسرال والوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت مضبوط اور طاقتور ہیں، اگر ہماری بیٹی کے مزاج کے خلاف کوئی بات کی تو ہم اس کی مدد کے لیے موجود ہیں۔
बेटी को ससुराल के मद्दे मुकाबिल खड़ा करने में यह भी एक बुरा काम है। लड़की को शौहर या ससुराल से कोई शिकायत हो तो वालिदैन को चाहिए बेटी का दिल उनकी तरफ से साफ करने की कोशिश करे। सास ससुर की जिम्मेदारी यह है कि वो भी अपने बेटी की तरबियत दीन खुतूत पर करे और उसे वालिदैन और अकरबा रिश्तेदारों बीवी बच्चों के हुकूक की खुद निगरानी करे क्योंकि सास ससुर अपने बेटे के वालिदैन है और उसके हुकूक अदा करने के हवाले से अल्लाह के यहाँ जवाब दो है। मेरी मुसलमान बहनों, सास एक तजुर्बाकार होती है जो बहू की हैसियत से गुजर चुकी होती है। उसे मालूम है बहू को अपने वालिदैन से अलग होने पर क्या गुजरती है। सास अगर अल्लाह से डरने वाली हो तो माँ की तरह बहू के साथ शफकत व मोहब्बत का बर्ताव करती है। बहू से ससुराल के बारे में कोई नागवार बात हो जाए तो उसकी नासमझी कम उम्री पर मामूल करती है। माशरे में अक्सर देखा जाता है जहेज ना लाने या कम लाने का मसला सास उठाती है, फिर शौहर और दूसरे ससुराली लोग भी सास के शरीक बन जाते हैं और बहू बेचारी को ताने दे देकर उसका जीना दोबर कर देते हैं। लेकिन अल्लाह से डरने वाली सास जहेज का कभी मुतालिबा नहीं करती, बल्कि वो जानती है कि घर की जरूरत पूरा करना लड़के और लड़के के बाप की जिम्मेदारी है। इसी तरह सास अपने बेटे पर तो यह हक रखती है कि उससे अपनी खिदमत कराए और उस पर अपनी धाक जमा सकती है, लेकिन बहू पर नहीं, क्योंकि बहू की हैसियत सानवी होती है। सास अक्सर उसका ख्याल नहीं करती और यह भी बात वाजी है कि लड़का शादी से पहले अपने माँ बाप भाई बहन की तरफ मुतवज्जा रहता है। शादी के बाद तभी तौर पर उसकी तवज्जा काफी हद तक बीवी के तरफ हो जाती है। बाज वालिदैन समझते हैं बहू ने बेटा हमसे छीन लिया, लेकिन अक्लमंद और मुत्तकी सास ससुर ऐसा कभी नहीं सोचते, बल्कि उनको ये फिक्र रहती है कहीं बहू के मामले में कोई नाइंसाफी ना हो जाए। लिहाजा बेटे की ईमान उसकी बीवी को उसके शौहर के हवाले कर देने में आफियत समझते हैं, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह ताला का हुक्म है कि इमानत वालों की अमानतें उनके हवाले कर दिया करो। मेरी बहनों, मर्द सास ससुर माँ बाप का बेटा भी है और बीवी का शौहर भी। आइए अब देखिए कि सास बहू के मामले में हर दो हैसियत से उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है। बाहैसियत बेटा उसकी जिम्मेदारी है कि वालिदैन की फरमाबरदारी और खिदमत गुजार करे, जैसा कि कुरान कहता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihsanan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffan wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima waqfid lahuma janaha az-zulli min ar-rahmati wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira। और तेरा परवरदिगार साफ साफ हुक्म दे चुका है कि उसके सिवा किसी और की इबादत ना करना और माँ बाप के साथ एहसान करना। अगर तेरी मौजूदगी में उनमें से एक या ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनसे उफ तक ना कहना और ना उन्हें डांट डपट करना, बल्कि उनके साथ अदब व एहतराम से बातचीत करना और आजिज़ी और मोहब्बत के साथ तवाज़ु का बाजू पस्त रखना और दुआ करते रहना कि ऐ मेरे परवरदिगार उन पर वैसा ही रहम कर जैसा इन्होंने मेरे बचपन में मेरी परवरिश की। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के बाद दूसरे नंबर पर वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है और बेटे की बाहैसियत शौहर जिम्मेदारी है कि उसको पुरसकून माहौल मुहैया करे, बीवी के हुकूक की खुद निगरानी करे, घर के काम सफाई धुलाई खाने पकाने वगैरह का बोझ बीवी पर पड़ रहा हो तो अपने अहले खाना से खुद बात करके कामों में बराबरी पैदा करे, बीवी की बीमारी की सूरत में आराम मुहैया करे। इया में हमल और इया में हैज में तो अल्लाह ने अपने हुकूक नमाज रोजा का बोझ भी औरत पर नहीं डाला। फिर ये कितनी बड़ी नाइंसाफी होगी कि इन इयाम में भी बीवी को
घर के कामों में मसरूफ रखा जाए जैसा कि आम दिनों में रहती है। इसी तरह बीवी की जरूरत का भी ख्याल रखे, उसे कुछ ना कुछ रकम जाती जरूरत के लिए दे ताकि वो जरूरत के वक्त खर्च कर सके। और शौहर की ये भी जिम्मेदारी है कि माँ बाप भाई बहन के हुकूक में कमी ना करे, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, वआति ज़िल कुर्बा हक़्क़हू, और रिश्तेदारों का हक अदा करते रहो। मेरी बहनों, बहू की जिम्मेदारी है कि शौहर के हुकूक की अदायगी में भरपूर मदद करे, और शौहर पर हुकूक की भारी जिम्मेदारी वालिदैन के मुताल्लिक है और उनमें माँ का हक 3 गुना ज्यादा है। अगर बहू समझदार हो तो वह सास ससुर की खिदमत को अपने लिए बरकत का जरिया समझती है और अपने ससुराल के कामों में मदद करती है और हाथ बटाती है और किसी काम में साथ देने को इबादत समझती है। जैसा कि एक शायर कहता है, यही है इबादत, यही है दीन में ईमान, के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। बाज बहुएं खुद मुलाजिमत करती हैं और बच्चों को सास के पास छोड़ देती हैं। इसी तरह घर का सारा बोझ सास पर आ पड़ता है। ऐसा करना सास के साथ और अपने बच्चों के साथ नाइंसाफी है। सास जिनकी उम्र और जिस्म को आराम पहुंचाने की जरूरत है, बहू उनको और तकलीफ में डाल देती है। बच्चे जिनका हक है कि माँ उनकी देखभाल करे, उनको सास के हवाले कर देती है, जिनकी ये जिम्मेदारी नहीं है। बाज बहुएं ऐसी भी है कि घर में रहते रहते हुए भी इतनी आराम फुर्सत देती है कि कम बीमारी को भी इतना बड़ा चढ़ाकर बयान करती है कि खुद सास को खामखा कहना पड़ता है, आप आराम कीजिए, काम मैं कर लेती हूँ। हमारे माशरे में बाज बहुएं ऐसी भी हैं जो सास ससुर को बेयान मददगार छोड़ देती हैं। खुद मियाँ बीवी में मजाक हो रहा है, तकरीबात में हिस्सा लिया जा रहा है और सास ससुर बेचारे सारा दिन अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिका। ऐसी बहुओं को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर गौर करना चाहिए, मन लम यरहम सगीरना व यारिफ हक़्क़ कबीरना फलैसा मिन्ना। जो हमारे छोटों पर शफ़क़त नहीं करता और बड़ों के हक को नहीं पहचानता, वो हम में से नहीं। लिहाजा बहू की जिम्मेदारी है कि सास ससुर की बात को तवज्जो से सुने और जहाँ तक हो सके उसे माने, उनको जिस्मानी सुकून पहुंचाए, उनकी बीमारी के वक्त उनकी खिदमत में रात दिन एक कर दे, उनके वजूद को बाश व बरकत समझे। सास का रवैया बिलफर्ज अच्छा ना भी हो तो अपने रवैये और लहजे को उनके सामने नरम और शेरे रखें और उनको तन्हा छोड़ने के बजाय उनके करीब रहकर उनकी दिलचस्पी की बात या काम करें और उनकी पसंद को तरजीह दे। इसका नतीजा यह होगा कि बहू को भी अपनी बहू से ऐसा ही बदला मिलेगा जिस तरह के उसने अपनी सास के साथ किया था। यही है कानून फितरत, काटोगे वही जो बोगे। आखिर में अल्लाह से दुआ करो कि रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने की तौफीक अता फरमा और सास बहू के झगड़े जो हमारे माशरे में एक ही घर में रहने की वजह से हो रहे हैं, उन्हें खत्म फरमा और पुरसुकून की जिंदगी नसीब फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।